बिना समझे पढ़ना, जैसे एवरेस्ट चढ़ना, अकेले जंग लड़ना, I can't take it. अब वेदांतु देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। बेस्ट टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ना इजियर होगा। एग्जाम या हो लाइफ, अब से हर स्टूडेंट विनर होगा। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो Vedantu. Learn live online. To attend a free live class, download the app now. Hello guys, welcome to this session and we are going to do laws of motion today. So again this chapter is very important. We'll be doing some theory, we'll be doing some numericals. Please try to understand. शुरू करते हैं, right? Let's start guys. First of all, a bit of introduction from my side. My name is Gaurav Gupta. I did my mechanical engineering from NIT Rourkela. Cleared this GATE examination with 99.5 percentile. I have been teaching for last 4 years and I have taught and mentored 5,000 plus students. And we are here because the love that you have shown towards Vedantu. तो शुरू करते हैं guys with laws of motion. Before starting with the problems and theory, this is very important information. Please download this Vedantu app and you will be soon getting all the PDFs here. Doubts will be resolved there. Study material, classroom resources, everything you will be getting, right? Next thing, also you please subscribe to the Vedantu Neet channel. Help us in growing more and like the video, okay? Share the video. Chalo. Let's start with the session now, है ना? Quick revision कर लेते हैं थोड़ा सा. Whatever we have studied in laws of motion, थोड़ा सा we'll revise and then we'll be going to solve the problems, okay? Are we geared up for this guys? Let me know in the chat box. Okay, great. चलो शुरू करते हैं. First thing, जो laws of motion में हम 3 different laws पढ़ते हैं, right? But equation wise we have to understand these two, the third law and the second law. So third law में क्या होता है? The forces equal and opposite in nature. यही होता है ना? If you apply any force on somebody, it will also apply same force but in opposite direction. So FAB is equal to minus of FBA. That is force applied on A by B and force applied on B by A. Simple thing सबको आता है, I know. आगे बढ़ जाते हैं. Second law क्या कहता है? Force acting on any body is equal to rate of change of momentum of it, है ना? Rate of change of momentum, that is dp by dt. तो अगर x direction में momentum is changing, then force will be there in some x direction only. If momentum is changing in y direction, तो force y direction में आ गया. Similarly for z, ये हमें already पता है ना? Great. dp by dt को I can also write. Momentum is what guys? Momentum क्या होता है? Mass into velocity. तो dp by dt को I can write d of mv divided by dt. If you will take constant mass bodies, mass will come out of this differentiation and it will be written as mdv divided by dt. और dv by dt क्या होता है? Acceleration. तो force is equal to mass times, this is what? Acceleration. Simple formula, right? F equal to ma. Now these things will be required in this session. Obviously, we'll be solving some problems based on this. Also, let's see some of the important cases. For example, spring को समझ लेते हैं थोड़ा सा, right? So spring force से भी question they are asking in all the competitive examinations. So it is very important to understand this also. देखो, what is there? There is a spring. Spring constant is K. Spring constant क्या होता है? Force per unit deflection. How much force you will apply? How much deflection will be there, right? So this is defined as, I mean its unit will be Newton per meter. Force per unit deflection. ठीक है, उसको एक बार भूल जाते हो. Constant है spring का, right? Depends on spring. If you attach one mass, एक mass लगा दिया यहाँ पे m mass का, what will happen? It will basically elongate the spring, है ना? If you will say what is the natural length of the spring, मान लो कोई mass नहीं लगाया, then what is the natural length? वो कुछ यहाँ पे होगा, right? Let's say इतना length होगा, natural length. It is naturally. But the moment I attach this mass, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा. This is known as static deflection. Initial deflection, let's say delta, है ना? या फिर x लिख लो, चलो कुछ deflection आ गया x. When you will deflect this spring, attach some mass, what this spring will do? It will apply some force in this direction, है ना? और वही जो force लगाता है spring, that force is given by this formula.
F इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स. के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट. x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पोजीशन, राइट? यहां से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज x इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. देखो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बट फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, x नीचे f ऊपर, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ माइनस साइन. ठीक है, टू टेक केयर ऑफ दैट. तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स. इफ यू वांट टू चेंज द स्प्रिंग फोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड चेंज लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. ये समझ में आता है ना? फोर्स कब चेंज होगा? व्हेन x इज चेंजिंग. तो बेस्ड ऑन दिस आई विल बी डूइंग अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन AIPMT, जब AIPMT होता था. ओके, सो विल बी डूइंग दैट. तो ये बिल्कुल याद रखना, x चेंज होगा तभी फोर्स चेंज होगा. चलो लेट्स मूव अहेड. सम मोर स्पेशल केसेस देख लेते हैं which will be required for us. अब देखो ये बिल्कुल आसान है, सबको आता होगा. Even if you don't know, please remember the formulas. फॉर्मूला याद रख लो, काम हो जाता है. So let's say there are two masses M2 and M1. Assume M2 is greater than M1. ऐसा assume कर लेते हैं. तो there will be force in this direction, that is M2G. ये वाला फोर्स हो जाएगा M1 into G. तो पूरा सिस्टम जो है वो ऐसे एक्सेलरेट करेगा, राइट? M2 will come down, M1 will move up. तो इसका एक्सेलरेशन लेट्स से इट इज A, इसका एक्सेलरेशन A अपवर्ड्स. पूरा सिस्टम ऐसे जा रहा है. देयर विल बी सम टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, लेट्स से T. तो ये भी T, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन इन द पुली. तो जब फ्रिक्शनलेस, मासलेस हम पुली लेते हैं, टेंशन विल बी सेम. तो यहां पे भी T, यहां पे भी T. एंड नाउ वी हैव सिंपल फॉर्मूला. एक्सेलरेशन विल बी गिवन बाय M2 minus M1 into G, which is just net force. देखो नेट फोर्स कितना लग रहा है, इधर से M2G, इधर से M1G. तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? नेट फोर्स. तो ये क्या है? जस्ट F net डिवाइडेड बाई टोटल मास. तो एक्सेलरेशन इक्वल टू F अपॉन M, राइट? सिंपल फॉर्मूला. टोटल मास कितना है? M1 प्लस M2. ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. टेंशन, देयर इज ऑल्सो अ ट्रिक फॉर टेंशन, ये आप याद रख सकते हो. टेंशन विल बी 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2. ठीक है, खत्म. Just remember these two equations, that will really help you out. Okay, let's move ahead. Yes, this is also very important. This is from constraint relations. Constraint relation, okay? यहां पे वो क्या कह रहा है? This pulley is having two masses A and B, है ना? Pulley itself is moving with some velocity, with Vp, and B is moving with some velocity V2. A is moving with some velocity V1. What is the relation between Vp, V1 and V2 that we want to know? एक चीज ध्यान से देखना, इफ पुली इज फिक्स्ड, अगर इसको आप ऐसे फिक्स करके रखो, इट कैन नॉट मूव, तो हम क्या कहते हैं? लेट्स से दिस ब्लॉक इफ इट इज गोइंग अप विथ 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला जो ब्लॉक होगा वो नीचे जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड से, इजंट इट? बोथ वेलोसिटीज आर इक्वल. बट व्हेन पुली स्टार्ट्स टू मूव विथ सम वेलोसिटी, then there is a relation between V1, V2 and Vp, that is this relation, Vp is equal to V1 plus V2 by 2. इन दोनों का एवरेज आ जाता है Vp. ओके, ठीक है. ऑल्सो दिस इज ट्रू फॉर एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन के लिए भी बिल्कुल ट्रू है. ओके, वी कैन ऑल्सो डू दिस फॉर एक्सेलरेशन. चलो गाइस, सो दिस वॉज द क्विक रिविजन विच आई थिंक इट वॉज रिक्वायर्ड फॉर अस. नाउ वी कैन जंप इनटू प्रॉब्लम्स, है ना? आर वी गियर्ड अप फॉर दिस गाइस? करें एमसीक्यूज? यस. चलो पहला क्वेश्चन, टेक दिस क्वेश्चन. अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h. ड्रॉप्ड का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0, है ना? हाइट h से इसको ड्रॉप किया, हिट्स द ग्राउंड विथ अ सर्टेन मोमेंटम p वेक्टर. मोमेंटम मतलब कितने मोमेंटम से हिट कर रहा है, दैट इज m इंटू v. ठीक है, ये भी बात हो गई. ठीक है. इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 100% मोर, है ना, 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाय. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखो, इनिशियल मोमेंटम जब वो 0 से इसको ड्रॉप किया, लेट मी डू इट्स. ओके, सो यहां से कुछ ड्रॉप किया इस बॉल को फॉर सम हाइट h हाइट से ड्रॉप किया, तो लेट्स से हियर व्हेन इट फॉल्स मोमेंटम इज p वेक्टर. इन द सेकंड केस 100% मोर हाइट. अच्छा, 100% मोर हाइट का मतलब क्या होता है? h प्लस 100/100 2h हो जाएगा वो, है ना? क्या करोगे आप? h इनिशियल हाइट प्लस कितना इंक्रीज करना है उसको? 100%. तो 100 इंटू h डिवाइडेड बाई h, तो ये कितना हो जाएगा? 100 से ही इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 1 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, राइट? डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो कितना हो गया? 2h. ये समझ में आता है ना? किसी चीज को आप 100% इंक्रीज करो, दैट विल बिकम डबल, है ना? ग्रेट. तो सेकंड केस में इट इज रिलीज फ्रॉम 2h हाइट, है ना? ये स्केल में नहीं है हाइट्स, दिस इज नॉट ट्वाइस ऑफ दैट, बट आई एम राइटिंग दिस इज 2h.
तो मुझे निकालना है हाउ मच इज द मोमेंटम हियर। अब देखो कैसे करेंगे, काइनेमेटिक्स इज रिक्वायर्ड हियर। ध्यान से देखना, व्हेन यू ड्रॉप समथिंग फ्रॉम जीरो वेलोसिटी, द मोमेंट इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर ट्रेवलिंग हाइट h, इट्स वेलोसिटी बिकम्स √2gh। ये सबको आता होगा, इवन इफ यू डोंट नो, जल्दी से बता देता हूं मैं। देखो ये इक्वेशन मैंने पढ़ा है क्या, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, पढ़ा है बिल्कुल, है ना। इनिशियल आप जीरो ले लो, तो v² विल बी इक्वल टू 2g इंटू h, तो v कितना हो जाएगा, √2gh, वही लिखा मैंने यहां पे, √2gh। तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम इस केस में, मोमेंटम, तो मोमेंटम विल बी मास टाइम्स वेलोसिटी विच इज √2gh। डन, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, फर्स्ट केस का मोमेंटम। सेकेंड केस में हाइट बिकम्स 2h, तो वेलोसिटी विल बिकम हाउ मच, √2g इंटू 2h, है ना, √2gh होता है फॉर्मूला, तो h बिकम 2h, तो √2g इंटू 2h, तो मोमेंटम फाइनल p डैश विल बी हाउ मच, मास टाइम्स दिस मच, √2g इंटू 2h, है ना। अब देखना ध्यान से, आई एम टेकिंग आउट दिस 2, एक 2 को मैं बाहर लेके आ रहा हूं यहां से, तो व्हाट इट कैन बी रिटन एज m इंटू √2, 2 बाहर आएगा रूट से तो √2, राइट, इंटू √2gh, एक 2 अंदर रह गया और एक √2 बाहर आ गया। नाउ व्हाट इज दिस m इंटू √2gh, इनिशियल मोमेंटम, m इंटू √2gh इज इनिशियल मोमेंटम, तो मैं फाइनल मोमेंटम क्या लिख सकता हूं, √2 टाइम्स इनिशियल मोमेंटम, √2 टाइम्स इनिशियल मोमेंटम। और √2 की वैल्यू कितनी होती है गाइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2, 1.414, है ना, ये वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, 1.414 टाइम्स इनिशियल मोमेंटम, लाइक √3 1.732, ऐसे कुछ कुछ आपको याद होना चाहिए, ओके। 1.414 इंटू p। नाउ हाउ मच इज द इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, ये कैसे निकालूंगा, बहुत आसान है, परसेंटेज इंक्रीज अगर चाहिए देन p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन p इनिशियल इनटू 100, हो गया, है ना। p फाइनल माइनस p इनिशियल कितना आ जाएगा, देखो p फाइनल इज 1.414 माइनस p इनिशियल दैट इज p, तो ये बन जाएगा 0.414, तो इट विल बी 0.414, p और p कैंसल इनटू 100, करेक्ट आंसर विल बी 41% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इट विल बी 41%। तो देखो काइनेमेटिक्स भी इन्वॉल्व है, एंड देन मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करके जस्ट फाइनल माइनस इनिशियल करना है, ओके। आई थिंक वी आर क्लियर ऑन दिस, है ना, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके ओके ग्रेट, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो इसका आंसर आ गया 41। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड दिस, दो इट इज इजी, आई विल बी टेलिंग यू वन शॉर्ट ट्रिक आल्सो, अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक, ओके, बहुत आसानी से कर पाओगे। देखो ध्यान से, ही सेज देयर आर 3 ब्लॉक्स 4 2 1, टोटल मास ऑफ द ब्लॉक कितना हो गया, 7 kg, लिख लो क्या यहां पे, यस 7 kg इज द टोटल मास। You have applied a force of 14 Newton from here. That means whole system will be accelerating. यही होगा ना, अगर आपने यहां से 14 न्यूटन फोर्स लगाया और यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, नॉट ओनली 4 kg बट 2 kg एंड 1 kg, एवरीथिंग विल मूव इन दिस डायरेक्शन। 4 वाला 2 को मूव करेगा, 2 वाला 1 को पुश करेगा, एवरीथिंग विल मूव टुगेदर। इफ एवरीथिंग इज मूविंग टुगेदर, टोटल मास इज 7 kg, हाउ मच इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? Acceleration of the system will be total force which is 14 divided by 7, है ना। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया, मींस दिस होल सिस्टम विल बी एक्सेलरेटिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट उसने क्या पूछा है मुझसे, ही हैज आस्क्ड व्हाट इज द फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ए एंड बी। ये जो ए है और बी है, इनके बीच में फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा। When two bodies are in contact, कौन सा फोर्स आ जाता है वहां पे, नॉर्मल फोर्स, राइट, वो जस्ट डायरेक्शन बताता है, नॉर्मल मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा। तो A विल बी पुशिंग B, मतलब A B पे किधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ, एंड B विल बी पुशिंग A, मतलब फोर्स ऑन A विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड बोथ आर इक्वल, N एंड N, है ना, नॉर्मल फोर्स। Y डायरेक्शन में आई एम नॉट मच वरीड, यहां पे mg और नॉर्मल होंगे बट दे विल गेट कैंसल्ड आउट, सो आई एम नॉट राइटिंग फोर्सेस इन Y डायरेक्शन, है ना। मुझे तो ये वाला फोर्स निकालना है A और B के बीच का। फॉर दिस व्हाट आई कैन डू, थोड़ा सा जो लॉन्ग मेथड है वो ये है, यू कैन ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ A, ठीक है, बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ A। तो 14 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, है ना,
Normal force applied by B will be in this direction on A. Normal forces are always compressive. वो हर body को compress करेंगे. तो whenever you are making the free body diagram, normal will be always compressive in nature. नीचे का normal भी देखो कैसा बनेगा वो, ऐसा है ना, which will be equal to mg. Though we are not worried about in y direction forces. ये force कितना हो गया n, and then there is one acceleration in this direction. Each body is having acceleration of 2 meter per second square. तो ये हो गया तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जस्ट अप्लाई द न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए. अब देखो एफ नेट कितना है, लेट्स टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव ले लो, तो दैट विल बी 14. तो एन वाला नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन भी इज इन दिस डायरेक्शन, वी हैव टेकन दैट एज पॉजिटिव. तो मास कितना है इसका, 4, राइट. 4 इंटू एक्सेलरेशन इज 2, तो कितना बन गया 8. तो n विल बी इक्वल टू हाउ मच, 14 माइनस 8, दैट इज 6 न्यूटन. करेक्ट आंसर इज 6 न्यूटन. बट इट विल टेक कंसिडरेट अमाउंट ऑफ टाइम, राइट, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम. आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, फिर दोनों फोर्सेस लिखोगे, देन यू विल राइट एफ नेट इक्वल टू एम ए. अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक देखना आप, ठीक है. ट्राई टू रिलेट विद द शॉर्ट ट्रिक. How much force I have applied on 4 kg block? 14 Newton, right? 14 Newton. And 4 kg block has to move forward. With how much acceleration 4 kg has to move forward? 2 acceleration, right? 2 meter per second square. So if you have a block of 4 kg, it has to move with 2 meter per second square. How much force will be required to move this block only? Only this block. How much force is required? Force will be equal to m into a, that is 4 into 2, which is 8. है ना? 8 Newton was required to move 4 kg block. How much you have given? 14 Newton. है ना? You have given 14 Newton force. It requires only 8 Newton. तो 14 minus 8, 6 is extra. 6 will be transferred to B. देखो, I am talking like scalar quantity. ये कोई scalar quantity नहीं है, but this is a short trick, right? ये कोई एनर्जी नहीं है कि इतनी एनर्जी मिली, इतनी रख ली और इतनी आगे वाले को दे दिया. But this trick will work here, though it is a vector quantity, है ना? So 14 Newton you have applied. 8 Newton is required to move this 4 kg block. How much is remaining force? 6. 6 will be transferred here. Okay? तो 6 Newton लग गया यहाँ पे. Also you can find out the force at this junction. यहाँ पे, मतलब यहाँ का normal force. कैसे निकालेंगे देखो. How much is given to B now? 6. है ना? यहाँ से कितना गया A से B को? 6 Newton force is given to B. 6 also, I mean this 2 kg also has to move with 2 meter per second square acceleration. अब देखो ये कोई 2 kg का ब्लॉक है बेचारा. This has to move with 2 meter per second square acceleration. तो how much force is required to move this? 2 2 is 4. And how much force is there already? 6. तो 6 minus 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 Newton. Okay? So using this shortcut you can easily find out the normal forces. यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2. Okay? चलो guys, I hope we are good on that. आगे बढ़ जाते हैं. Let's move ahead. So correct answer is 6 for us, है ना? ये वाला आंसर इसका सही है. Okay, let's move ahead. Find velocity of block B and pulley are given. हाँ ठीक है, देखो he is saying velocity of pulley is given, velocity of block B is given. He is asking how much is the velocity of block A. अच्छा, just now we have seen a formula if you remember, right? Velocity of pulley is equal to V1 plus V2 divided by 2. Don't forget these are vector quantities. तुम्हें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, Vp is a vector quantity, V1, V2 everything is a vector quantity. अब देखना ध्यान से. Let's assume any direction for A. मैं assume कर लेता हूं A is in upward direction, VA. ठीक है, I have assumed that to be in upward direction. आप downward भी assume कर सकते हो. You will get answer as negative. तो समझ जाना हमने जो assume किया था वो opposite था, है ना? Great. देखो, so now just put the values. Let's take upward direction as positive. जब भी मुझे velocity upward direction में दिखेगी, I'll take that as positive. Vp is how much? Plus 4 or minus 4? Let me know. Plus 4, exactly, क्योंकि upwards है. Upwards I have taken that as positive. Plus 4 is equal to again Va या फिर V1 जो भी आपको लिखना है, plus V2 कितना है? Upwards, तो 6 plus 6 divided by 2. अब देखो ध्यान से कितना आ गया? 4 2 जा 8 is equal to VA plus 6, है ना? तो VA will be how much? VA will be 8 minus 6, that is 2 meter per second square. Great.
अब हमने क्या देखा था, पुली का जो वेलोसिटी होता है दैट इज एवरेज ऑफ दीज टू, तो ये कितना आया आंसर 2, एवरेज देख लो 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4, हो गया एवरेज, है ना। तो इसी इक्वेशन निकाला है तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, बट दिस इज हाउ यू हैव टू डू, ओके, एंड टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन। अगर 6 was given in downward direction then I would have taken that negative, ठीक है। चलो गाइस, ग्रेट गोइंग्स, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यस, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेन एंड पेपर इज नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन जस्ट गिव द आंसर बाय लुकिंग एट दिस क्वेश्चन, राइट। देखो वेक्टर्स में देयर इज अ प्रॉपर्टी दैट इफ 3 वेक्टर्स फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, ठीक है, जैसे 3 फोर्स वेक्टर हैं, इफ दे आर फॉर्मिंग अ क्लोज्ड लूप then the net force will be 0, that's it, F net will be 0 in this case. कैसे, देखो in last 2 classes we have seen how to solve vectors. If you have not seen the videos of kinematics 1D and 2D, please do watch them, ये समझ में आएगा तुम्हें, right? I have told you how to add 2 vectors, though I'll be telling that again. Let's say I have 2 vectors A and B, ये वाला और वो वाला, ठीक है। So one vector this, one vector this. If you are adding these 2 vectors, then triangle law says that the third closing side will give you the resultant vector. Okay, this third closing side will give you the resultant vector, and sign of the resultant vector will be in opposite direction. जैसे देखो order will be in opposite. तो अगर ये दोनों vectors ऐसे order में थे, देखो दिख रहा है ना, पहला vector ऐसे, दूसरा vector ऐसे, तो इसका order कैसे है, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज कह लो। Then the order of resultant will be in opposite, that is ऐसे कुछ clockwise, तो मतलब resultant vector होगा ऐसा, arrow will be in upward direction. This is the resultant vector of these 2 vectors. अब ध्यान से देखना, इसका और इसका resultant कहां पे है, upward direction में, है ना, but where you have applied the third force opposite to that of the resultant, तुम resultant को ही oppose कर रहे हो with equal magnitude, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा गाइस, टेल मी, 0, एग्जैक्टली, रिजल्टेंट इधर था, उतना ही फोर्स लगा दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेट फोर्स 0। तो आप तो बस ये याद रखो कि व्हेनेवर फोर्स फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप, आप आंख बंद करके डाल दो, नेट फोर्स इज 0, एंड व्हेन नेट फोर्स इज 0, एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी विल रिमेन सेम, अनचेंज्ड, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ए, वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, ओके। चलो गाइस, ग्रेट, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके, दिस इज अगेन अ फेमस वन, और यहां पे एक बेसिक मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी होती है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन हियर। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बेसिक मिस्टेक। देखो, एनीवन विद द आंसर? चलो मैं बताता हूं, कोई बात नहीं, ध्यान से देखना। द बेसिक मिस्टेक दैट यू पीपल कमिट इज, स्टूडेंट्स कमिट इज, वो कहते हैं ये फोर्स तो mg है डाउनवर्ड्स, है ना, यहां पे mg फोर्स लग रहा है, जस्ट राइट दिस टेंशन एज T इज इक्वल टू mg, नेट फोर्स 0, तो ये वाला टेंशन भी T इक्वल टू mg। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ये गलत है, मैं बताता हूं क्यों गलत है। इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन दिस साइड विच इज 2mg, 2mg का फोर्स है, राइट। तो कैन वी से दैट दिस इज इन इक्विलिब्रियम, दिस इज नॉट मूविंग? नो, दिस इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन ऑलरेडी, क्योंकि नीचे फोर्स कितना होगा, mg, बट टेंशन विल नॉट बी mg, टेंशन अब यहां से देखो, इफ दिस इज 2mg, तो ये भी कितना हो गया, 2mg, है ना, ये भी कितना हो गया, 2mg। तो दिस 2mg विल पुल दिस मास m इन अपवर्ड डायरेक्शन विद सम एक्सेलरेशन, है ना। तो आप नहीं लिख सकते कि यहां का टेंशन कितना है, mg, द टेंशन इज 2mg, ओके, बिकॉज होल सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग। अगर ये इक्विलिब्रियम होता, रेस्ट पे होते सब कुछ, देन वी वुड हैव रिटन दैट टेंशन इज mg। अब टेंशन कितना आ गया, 2mg। इफ आई ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट पुली, तो यहां से फोर्स है 2mg, एंड यहां से भी एक फोर्स है 2mg, है ना। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, बिकॉज पुली जो फोर्स लगाएगा दैट इज रिजल्टेंट, दिस वन, राइट। द बेस विल अप्लाई अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और वो रिजल्टेंट होगा 45 डिग्री पे। सो व्हेन यू हैव 2 इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट 90 डिग्रीज, ऐसे 2 इक्वल फोर्सेस 2mg एक्टिंग एट 90 डिग्रीज, रिजल्ट आता है √2f। आई विल बी टेलिंग यू हाउ। इफ यू कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, जो ये वाला है, जो फोर्स कहां लग रहा है, बेस से लग रहा है, सो दिस फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स विल बी गिवन बाय √fx² प्लस fy²। ये फॉर्मूला सबको आता होगा ना, 2 फोर्सेस एक्टिंग इन 90 डिग्रीज, ये फॉर्मूला होता है।
पूरा फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अगर मान लो दो फोर्सेस हैं F1 और F2, राइट, एक्टिंग एट सम एंगल थीटा, तो हम क्या यूज करते हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। यहां पे cos थीटा हो जाता है 90, isn't it? तो वो पूरा टर्म cos थीटा वाला 0 हो जाता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट? सिंपल वेक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो व्हेन टू फोर्सेस आर एट 90 डिग्रीज, दिस इज द रिजल्टेंट। अगर आप इसको ऐसे ऐड करोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर एज √2 इंटू 2mg। ठीक है, √2 टाइम्स 2mg, √2 इंटू f हो जाता है, f इज 2mg। ग्रेट, चलो जस्ट अवॉइड दैट बेसिक मिस्टेक, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्प्रिंग का प्रॉब्लम विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट इन द थ्योरी, है ना, जो मैंने क्विक रिवीजन किया था। देखो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, ही सेज सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम एंड एट रेस्ट। ये रेस्ट पे है अभी सिस्टम, ठीक है। द स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग आर मासलेस, कोई भी मास नहीं है उनका। नाउ द स्ट्रिंग इज कट, इसको यहां पे कैंची लेके ऐसे काट दिया स्ट्रिंग को। द एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m एंड m जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट विल बी। तो जैसे इस स्ट्रिंग को यहां से काटा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस m एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2m, ये निकालना है हमें। चलो ध्यान से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट m। जो m है, व्हेन यू कट इट विल बी अंडर फ्री फॉल। डू यू अग्री? कुछ भी नहीं है ना, जस्ट कट द स्ट्रिंग, ये आराम से गिरने लगेगा नीचे। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस m? g डाउनवर्ड्स, g से वो नीचे आ जाएगा। सिंपल, राइट? कोई भी चीज पकड़ो छोड़ दो, दैट विल कम डाउन विद g, इजंट इट? तो g डाउनवर्ड्स मतलब या तो ऑप्शन ये वाला होगा या तो ऑप्शन ये वाला होगा। ओनली टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। अब देखते हैं, और 2m पे आ जाते हैं, राइट? मुझे 2m का भी एक्सेलरेशन चाहिए। पहले देखते हैं इनिशियली व्हाट वाज हैपनिंग। इनिशियली व्हाट वाज हैपनिंग, this 2m and m, total mass 3m was balanced by this spring. Can I say that? Total mass कितना है जो स्प्रिंग बैलेंस कर रहा है? 2m plus m, पूरा वेट इसको उठा के रखना है, राइट? पूरा भार इसको उठाना है। तो 2m plus m that is 3mg is the total weight balanced by the spring. तो अगर स्प्रिंग पे नीचे 3mg फोर्स लग रहा है and it is in equilibrium, then spring also must be applying the same 3mg force. Are you getting this point? Are we clear on that? स्प्रिंग पे टोटल फोर्स नीचे कितना? 3mg, इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो ऊपर फोर्स कितना? 3mg, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा ना, तो 3mg ऊपर भी लग रहा था। ठीक है, ये तो पहले की बात हो गई, पुरानी बात हो गई। द मोमेंट यू कट दिस स्ट्रिंग, नाउ दिस m इज नो लॉन्गर सपोर्टेड बाय द स्प्रिंग। ये m तो गया, अब अलग हो गया, वो अलग सिस्टम है, वो नीचे जा रहा है। तो द टोटल लोड एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग विल बी जस्ट 2mg। समझ रहे हो ये बात? m तो गया अब, राइट? m को तो काट के फेंक दिया, तो ओनली लोड एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग इज 2mg। देन कैन यू टेल नाउ हाउ मच विल बी द अपवर्ड फोर्स? विल इट बी 2mg नाउ? नो। दोज हु आर थिंकिंग दैट व्हेन यू कट दिस स्ट्रिंग, ये m गया, डाउनवर्ड फोर्स इज 2mg, दैट वी कैन सी upward force also will be 2mg. If you are thinking that is wrong. Upward force still at that instant will be 3mg. अब ये कैसे हुआ? ये कौन सी बात हो गई? ये वाली बात, F is equal to minus kx, ये पढ़ा है हमने, राइट? If you want to change the spring force, first of all x should change. मतलब इसका लेंथ चेंज हो जाना चाहिए, राइट? Whatever length is there for the spring, सबसे पहले तो वो चेंज होना चाहिए। At the moment when you cut it, तुरंत length will not change, right? Length will remain same. इसी मोमेंट पे निकालना है। You have to find out the acceleration just after, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो, just after the string is cut. Just after the string is cut, the length cannot change very fast, है ना? लेंथ उतना ही रहेगा। So at that instant, spring still will be applying 3mg force only. स्प्रिंग उस मोमेंट पे भी कितना फोर्स लगाएगा? 3mg. बट व्हाट इज द लोड ऑन द स्प्रिंग? 2mg, है ना? मतलब अगर हम 2m का फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, दिस मास 2m, तो इसके साथ क्या हो रहा है? देखो ट्रेजेडी क्या है, इसका वेट तो 2mg ही है, बट स्प्रिंग इज ट्राइंग टू पुल इट विथ 3mg बिकॉज इट इज इन सम इनर्शिया, राइट? पहले भी वो 3mg लगा रहा था, जब तक लेंथ चेंज नहीं हो जाता इट कैन नॉट चेंज द फोर्स, तो ये तो अभी भी 3mg ही लगाएगा। दैट मीन्स there is a net force acting on 2m mass in upward direction. Net force देखो कितना है net force? 3mg minus 2mg, यानी कि net force है mg in upward direction.
है ना, ये क्या हो गया इसका नेट फोर्स एफ नेट. नाउ इफ यू वांट एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, ये तो समझ में आ गया, दैट विल बी अपवर्ड्स, क्योंकि ज्यादा फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो इट विल बी अपवर्ड्स. हाउ मच विल बी दैट? एक्सेलरेशन इज गिवन बाय नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी. नेट फोर्स इज mg, मास ऑफ द बॉडी इज 2m. अगेन वन थिंग, m नहीं है वो 2m है, याद रखना 2m. तो m और m कैंसल, एक्सेलरेशन विल बी g/2 इन अपवर्ड डायरेक्शन. करेक्ट आंसर इज A. ठीक है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल. स्प्रिंग का फोर्स चेंज नहीं हो सकता लेंथ के साथ, ये हमें याद रखना है, राइट? व्हेन लेंथ इज नॉट चेंजिंग, फोर्स इज नॉट चेंजिंग, स्टिल इट इज अप्लाइंग 3mg, नीचे 2mg, नेट फोर्स mg डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 2m. तो एक्सेलरेशन g/2. ठीक है, चलो ग्रेट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम. दिस वाज अ वेरी गुड वन. ठीक है, g/2 अपवर्ड्स एंड g डाउनवर्ड्स. चलो लेट्स मूव अहेड गाइस. Amazing, you are doing amazing. I can see some correct responses in the chat box. Good. A body of mass 5 kg. देखो इसको कैसे करेंगे. A body is given, mass is 5 kg under the action of constant force. इसके पास कुछ constant force है, मतलब constant acceleration है. Has velocity at t equal to 0 as this much, 6i minus 2j, and at t equal to 10 seconds velocity becomes 6j. पूछ रहा है फोर्स कितना होगा. वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई हैव इंक्लूडेड दिस जस्ट टू गिव यू अ फील की हाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग इन नीट, राइट? नॉट ऑल द क्वेश्चंस आर ट्रिकी, सम आर वेरी इजी, बट फॉर दैट यू शुड नो द बेसिक्स. एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं हम? देखो, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ये होता है. एंड इफ यू वांट फोर्स, दैट विल बी मास टाइम्स एक्सेलरेशन. तो इसमें बस मास से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. ये हो जाएगा क्या? फोर्स. अब देखो, जस्ट सी हाउ मच इज मास. मास इज 5 kg. v फाइनल कितना है? देखो, v फाइनल इज 6j माइनस v इनिशियल इज हाउ मच? 6i माइनस 2j. इट विल बिकम प्लस 2j, क्योंकि माइनस था यहां पे बाहर में, राइट? सो दैट आई टुक इनसाइड एंड डिवाइडेड बाय 10. हो गया आंसर 5 2 जा, है ना, 2 से कैंसिल हो गया. 6j प्लस 2j विल बी 8j. तो ये हो जाएगा 8j एंड दिस विल बी माइनस 6i. सो माइनस 6i प्लस 8j डिवाइडेड बाई 2 क्या बन जाएगा? ये माइनस 3i प्लस 4j, है ना, माइनस 3i प्लस 4j. दैट्स इट. सो द करेक्ट आंसर इज दिस ओनली. वेरी इजी क्वेश्चन, बट यस, जस्ट प्रैक्टिस, राइट? वी हैव टू प्रैक्टिस इजी क्वेश्चंस आल्सो. ग्रेट, चलो आगे बढ़ जाते हैं. यस, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन गाइस? एनीवन विद द आंसर? देखो, कुछ भी नहीं है. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स. सूडो फोर्स में क्या होता है? दिस A एंड B, दे आर ऑन अ फ्रेम विच इज एक्सेलरेटिंग, है ना, दे आर ऑन अ लिफ्ट एंड लिफ्ट इटसेल्फ इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स. कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, दे आर एक्सेलरेटिंग. Whenever a body is kept on a non-inertial frame, that means accelerating frame, there will be a pseudo force acting on the body. जो pseudo force act कर रहा होता है, F pseudo, right, is given by mass of the body into acceleration of the frame. और इसका जो डायरेक्शन होता है, that is in opposite direction to this acceleration of the frame. Simple thing, right? Opposite direction to the acceleration of the frame. I'll repeat. A and B are on a frame which is accelerating. Whenever frame is accelerating, that is a non-inertial frame. And whenever bodies are kept in non-inertial frame, one pseudo force will come. Pseudo force is given by mass into acceleration of frame. Direction of this force will be opposite to that of the acceleration of the frame. हो गया आप क्वेश्चन. देखो, if I draw A का free body diagram, है ना, A का free body diagram, there is some weight of A, mg, mass of A into g. B will be applying some normal force on A, तो नॉर्मल फोर्स अपवर्ड्स. ठीक है, ये हो गया. ऑल्सो वी सेड देयर विल बी अ सूडो फोर्स. सूडो फोर्स कितना? मास ऑफ ए विच इज 0.5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम विच इज 2, यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. एक्सेलरेशन फ्रेम इज डाउनवर्ड्स, तो सूडो फोर्स विल बी एक्टिंग इन अपवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ 1 न्यूटन. ठीक है, 1 न्यूटन, और दिस इज द नॉर्मल फोर्स. mg का वैल्यू कितना है? 0.5 इंटू 10 विच इज 5. तो देख लो, नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? टोटल अपवर्ड फोर्सेस आर 1 प्लस n, इन टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस 5, तो n विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन. ठीक है, सो इन दिस केस द फोर्स अप्लाइड बाय B ऑन A और A ऑन B, द नॉर्मल फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन. ठीक है, ग्रेट गाइस. चलो
आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकेंड. Yes, this one. Again a very important problem. He is saying there are two systems. In this system there is a pulley, there is a mass m, ये वाला mass m, and there is a mass 2m. In this case also there is a mass m. In the first case, देखो ध्यान से पढ़ो. In first case, the mass m is lifted up by attaching a mass of 2m on the other end. इसको उठा रहे हैं कैसे? 2m mass लगा के. And in second case, the mass m is lifted up by applying a force of 2 mg. Force लगाया 2 mg. Mass नहीं रखा है कोई, right? Just he has applied some force of 2 mg. He is asking what is the ratio of acceleration in two cases. ध्यान से देखना. We have studied already कि जो acceleration of system होता है in such case is net force divided by total mass. यही होता है ना. यहां पे देखो net force कितना हो जाएगा? Downwards is 2 mg and यहां पे mg. तो 2 mg minus mg. I have given you the formula towards the beginning of this class if you remember, right? तो 2 mg minus mg net force is just mg divided by total mass. Total mass कितना है सिस्टम का? m plus 2m which is 3m. तो m और m कैंसिल हो गए. Acceleration in first case is g by 3. हो गया. इस पे आ जाते हैं अब. Again what is the net force? 2 mg यहां से, mg यहां से. तो what is the net force guys? बताओ. Acceleration equal to net force mg divided by total mass. यहां पे ट्रिक है. यहीं पे एग्जामिनर तुम्हें डिसीव करने की कोशिश कर रहा है, बट डोंट गेट डिसीव्ड. टोटल मास इज नॉट 3m लाइक दिस. टोटल मास इज ओनली m because you have not attached any mass here. You have just applied a force of 2 mg. तो टोटल मास कितना हो गया? जस्ट m, not 3m. m और m कैंसल, एक्सेलरेशन इज g. तो इस केस का एक्सेलरेशन g by 3, इसका एक्सेलरेशन g. टेक द रेशियो 1 by 3. ठीक है. g by 3 is to g, that is 1 by 3. C is the correct answer. Okay guys, hope you understood all the problems today and hope you enjoyed the class. Practice करना दोबारा से and practice some new question also. I wish you best of luck for your NEET examination, right? चलो, ठीक है. And again guys, please download the app, Vedantu app. All the PDFs very soon you will be getting there. Okay, have some patience. You will be getting that. Also like, share and subscribe. चलो, that's it guys. मिलते हैं next class में. Bye bye. Signing off.